बजाज यानी आरकेबी, और मैं हूं इस वक्त एडवोकेट प्रदीप बंबियाल जी के साथ। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। आप सब लोगों को प्रदीप जी और मेरी तरफ से जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव। आप सबको अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शलोम, वणकम। चाइनीज में नि हाओ, जापानीज में konnichiwa, प्रदीप जी। Avariyako Jambo to our viewers in East Africa, South Africa, the continent of Africa, wherever they speak Swahili. Wherever they speak Swahili. Lovely language, absolutely lovely language, as far as Swahili is concerned. So, Pradeep ji, insofar as Parliament is concerned, what the activities happening off Parliament, are causing a greater amount of chatter than those things which are going on inside Parliament, which is strange. You have the Vice President Jagdeep Dhankar Sahab, who is the chairman of the Rajya Sabha, and Jaya Bachchan clashing over the tone of Jagdeep Dhankar Sahab's voice. And within Parliament too, you have Mr. Om Birla under pressure from all sorts of places, both from the Treasury benches and from the opposition. Now, when a speaker comes under pressure from both the Treasury benches and from the opposition, that means he's doing a good job. That at least is my opinion. But what we see, what we perceive, we hope that the principles of democracy for which the founding fathers made this entire system of democracy got us independence. Let us ultimate objective is कि हम लोगों के काम कर रहे हैं वहाँ बैठ के are we solving the issues affecting the common man. लेकिन प्रदीप जी, जहाँ तक जय जी का सवाल है, जय बच्चन जी का सवाल है, जय बच्चन जी ने जो कहा कि आपकी टोन जो है, आपकी आवाज़ की जो टोन है वो ज़रा ठीक नहीं है, हम लोग बच्चे नहीं हैं, स्कूल के बच्चे नहीं हैं, which is kind of correct in the sense that they are also members of parliament. But I agree, members of parliament have to remain within the law, within the prescribed rules and regulations of parliament. Now, I think he has to respect, as you say, Mallikarjun Kharge साहब है, वो अगर सीनियर लीडर कुछ बोलना चाहते हैं, he should give a hear. You can't allow say, no, you can't speak. I mean, you don't. I will not allow you to speak. You can't behave with the leader of the opposition. You need to respect the leader of the opposition also. But at the same time, all parties together to see that this democracy flourishes. This entire institution you call the temple of democracy. But let us believe that it's a temple. Let us make it believe. But I'll tell you what, Pradeep ji. As far as I'm concerned, I think that perhaps the BJP, the Modi government, perhaps made a mistake, in my personal opinion, bringing in the Waqf Amendment Act so quickly. इतनी जल्दी लाना मुझे लगता है गलती था. इसकी वजह से Joint Parliamentary Committee को आपको वापस भेजना पड़ा. Now at the moment we've got and of course we can also tell you that Vinesh Phogat's hearing is going on at the moment in Paris. It's on right now. I hope we get some good news, which I doubt very much, very frankly, because that will open up the floodgates. I'm praying that that Vinesh Phogat actually gets the silver medal, or judgment comes in her favor, but that will open up the floodgates for all sorts of litigations everywhere within the International Wrestling Federation. So I'm not sure what can be done, but if something can be done, I hope it is actually done. However, at the moment with us, we have Ajay Pathak साहब BJP के और नाज़र हुसैन साहब कांग्रेस के, दोनों के दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं. अजय पाठक साहब नमस्कार. नमस्कार सर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम. वंदे मातरम सर, जय सिया राम, हर हर महादेव. नासर साहब, हाउ आर यू सर? How are you sir? Nasir साहब, good evening. कैसे हैं? Very good evening sir, very good evening. How are you sir? Absolutely fine. So नासर साहब, आमिर खान की जगह अब आप ले रहे हैं, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में अब आप बॉलीवुड में अब आप जाने हो. शाहरुख खान के बहुत सारे रोल्स भी आ गए. But anyway, that's a separate issue. नासर साहब, पहले आप, क्योंकि आप ऑपोजिशन से हैं, मुझे लगता है विपक्ष का पहला दायित्व होता है कि भाई वो अपनी बात सामने रखे. सर, ये जो वक्फ का जो अमेंडमेंट पेश किया गया, उसके बाद अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया गया, क्या वक्फ में इतनी ज्यादा तकलीफ है नंबर एक कि उसके लॉ को अब चेंज करना पड़ेगा? ऐसा है क्या नासर साहब? नहीं, एक्चुअली चेंज करना नहीं है, एक मुद्दों को जिंदा रखना है. जिस तरह से कॉमनल चीजें होती है उसे जिंदा रखना है, क्योंकि बीजेपी समझ चुकी है कि भगवान राम मंदिर जब बन गई और उनको कोई फायदा नहीं हुआ, उस मुद्दा को जिंदा रखने से उन्हें ज्यादा फायदा था, उसे बनाने से कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ. धारा 370 का मुद्दा जिंदा रखना था, उसे खत्म करने से कोई फायदा नहीं हुआ. इसी तरह इस हिंदू मुसलमान के मुद्दे को अब जिंदा रख के वो फायदा लेना चाहते हैं. नहीं तो नजूल बिल यूपी में आता है, उनकी सरकार रहती है, वो सरकार रहती है, वो बिल ठंडे बक्से में चली जाती है. तो इनका मकसद उस बिल को पास कराना नहीं था,
उस मुद्दे, उस बिल के ऊपर राजनीति करना था, उस बिल के ऊपर हिंदू मुस्लिम की बातों को जिंदा रखना था, समाज में नफरत रखना था। वरना मैं पूछना चाहता हूं, इस वक्फ एक्ट के अंदर वो क्या चेंजिंग करना चाहते हैं? वो कहते हैं कि नन मुस्लिम को इसमें रखना है, तो इसमें कब मना था कि नहीं रख सकते? आप पहले भी रख सकते थे। वो एक्ट मैं पूछना चाहता हूं, जो वक्फ एक्ट मना करता है कि नन मुस्लिम इसके अंदर इंटर नहीं कर सकते, ऐसा तो कोई एक्ट में रूल नहीं है। महिला को रखने का भी इस पर रीजन था, कहीं से मना नहीं था। आप बताइए, वक्फ एक्ट जो है वो कौन चलाता है? राज्य की सरकारें चलाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट चलाती है, सारी पाबंदियां गवर्नमेंट के हिसाब से चलती है। पहले सर्वेयर कमिश्नर नियुक्त होता था, उसको कौन नियुक्त करता था? वहां की राज्य सरकार नियुक्त करती थी। आज कलेक्टर नियुक्त होगा तो कलेक्टर भी तो राज्य के थ्रू है। तो जितने भी करप्शन है, ऐसा नहीं कि मैं कहता हूं वहां करप्शन नहीं है, करप्शन है, करप्शन हो सकता है, मगर उसकी जांच की पाबंदियां जो लगाना है वो कौन करेगी? वो राज्य की सरकार ही करेगी। तो इसमें कौन सा नया चीज वो लाना चाहते हैं, वो मैं समझ नहीं पाया। मैं पूरा एक्ट पढ़ रहा था। आप देखिए, 1846 में बरकत मियां का एक केस गया था, उस केस में भी यही पाबंदियां आई थी। तो उस समय 1913 तक ये बिल लटका रहा। 1913 में अंग्रेजों ने क्या फैसला दिया था? 1913 में अंग्रेजों ने यही फैसला दिया, इसके जो चलाने वाले होंगे ये मुस्लिम होंगे, ये वो होंगे, ये फलाना होंगे, पर उसको सब पूरे एक्ट को 1956 में बदल दिया गया। 1956 में दूसरे हिसाब से लाया गया। तो इमिटमेंट होता है, मगर वो क्या इमिटमेंट करना चाहते, क्या कहना चाह रहे, वो खुद भी नहीं समझ पा रहे, ना देश को समझा पा रहे। वो दो चंद मिसालें दे रहे हैं, वो चंद मिसालों को आप पूरे हिंदुस्तान का मिसाल नहीं हो सकता है। पाठक जी समझदार है, हम दोनों बहुत बार, एक बार किसी चैनल में हम कभी मिले इनसे, हम कई बार इनके साथ हम डिबेट में रहे, कभी हॉट टॉकिंग भी हमारी इनके साथ हुई, पर हमारे अच्छे दोस्त बन चुके हैं, क्योंकि किसी चैनल पे हम कई बार मुझे लगता है 8-10 बार हम इनके साथ मुलाकात कर चुके हैं। तो मैं चाहूंगा इस पे वो बताए कि वक्फ एक्ट क्या कहता है, वक्फ एक्ट क्या समझाना चाहता है, आप समझाए ताकि मैं भी समझूं, तभी उसके ऊपर मैं बेहतरीन आपको जवाब देता हूँ। अजय पाठक साहब, अब आप बताएं सर, अभी वक्फ अमेंडमेंट एक्ट लाने की जरूरत क्या पड़ गई? क्या मतलब क्या हुआ अभी? व्हाट इज दी मतलब जो ट्रिगर क्या है? अभी क्या हुआ है कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट लाने की जरूरत पड़ गई, जो वक्फ एक्ट में अभी तक जो प्रावधान नहीं है, जिसके तहत सरकार का हस्तक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि वैसे भी आईएएस ऑफिसर तो बैठता ही है सर वक्फ बोर्ड में, वैसे भी सरकारी नुमाइंदे तो होते ही हैं वक्फ बोर्ड में। तो अभी सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट ही नियुक्त करती है, जी चेयरमैन गवर्नमेंट। अब उनको बोलने देना सर, आप बोल चुके हैं, पाठक साहब को बोलने दें। जी पाठक साहब प्लीज गो अहेड। बजाज जी, इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जी, वो ये है कि किसी भी संस्था को, किसी भी ट्रिब्यूनल को, उसको ये अथॉरिटी पूरी की पूरी दे देना कि ना आप सुप्रीम कोर्ट उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ना लोअर कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, ना रेवेन्यू हस्तक्षेप कर सकता है। आप जिस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, कल को एक व्यक्ति आपका स्टूडियो दान कर दे और बता दे कि ये स्टूडियो कल से वक्फ बोर्ड की जगह हो गई, आप अपील करने के लिए कोर्ट में नहीं जाएंगे, इनके ट्रिब्यूनल में जाएंगे, वक्फ बोर्ड के ट्रिब्यूनल में जाकर के आप अपील करेंगे और यही सुनवाई करेंगे, यही वक्फ बोर्ड जज होगा, यही फैसला सुनाएगा और यही उसका सब कुछ करेगा। तो ये जो असीम शक्तियां उसको प्रदान कर दी गई है, किसी भी संस्था को ये असीम शक्तियां है नहीं। आज के समय में 10 लाख एकड़ जगह इसी तरह से ये ले करके, आप सोचिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को वक्फ बोर्ड कहता है कि ये हमारी जगह है। अभी 1500 साल पुराना एक गांव है तमिलनाडु के अंदर, 1500 साल पुराना, इस्लाम को अस्तित्व में आए 1400 साल हुए और 1500 साल पुराने गांव को के मंदिर को और पूरी गांव की जगह को ये बोलता है वक्फ बोर्ड की वो पूरी की पूरा गांव, पूरा का पूरा मंदिर हमारा है। ये मुंबई में जब एक डेवलपमेंट होने जाता है तो वहां रोक देता है कि ये जगह हमारी है। लखनऊ के अंदर एक महिला की जगह ये ले लेते हैं वक्फ बोर्ड के लोग। आदरणीय अखिलेश यादव की सरकार होती है, वो दर दर भटकती है, उसको कोई इंसाफ नहीं मिलता है।
200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू ये पाते हैं, उस रेवेन्यू का ये हिसाब नहीं दे पाते हैं कि उस रेवेन्यू से ये कितने गरीब बच्चों को पढ़ाई किए। वक्फ बोर्ड इसके पहले हज यात्रियों के लिए हज सब्सिडी, हज के कुछ पैसे देता था, वो भी समाप्त कर दिया। 70 सालों में एक महिला छोड़ करके इन्होंने एक सिंगल महिला को नियुक्त नहीं किया, प्रतिनिधि नहीं दिया। तो ये असीम शक्तियां इसको क्यों दी जाएं किसी भी ट्रिब्यूनल को, कि कल को मैं जिस घर में बैठा हूं ये कह दे कि ये हमारी जगह है, तो हम कोर्ट में न जाकर के इन्हीं के ट्रिब्यूनल में लड़ने के लिए जाएं और फिर हम लड़ते रहें सालों साल 10, 20, 25 साल, और फैसला तो देना क्या करना है ये तो इनको पहले से पता है कि साजिशन इन्होंने जो चीजें की है, ये आज तक सिर्फ साजिश ही तो करते रहे हैं, उससे इन्होंने कितने लोगों का भला किया। 10 लाख एकड़ जगह लेकर के 50 देशों के बराबर, छोटे 50 देशों के बराबर इनके पास जगह है। उस जगह को लेकर के इन्होंने कितने मुसलमानों का भला किया, कितने बच्चों को पढ़ाया, कितने महिलाओं की जिंदगी को सुधार दिया। यही सब सुधार उसमें आ रहा है जो असीमित शक्तियां इनको मिली हुई है। पाठक जी यहाँ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, तुष्टिकरण के लिए पाठक जी छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण और एक वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कि ये वोट बैंक के ठेकेदार हैं, उनको ध्यान में रखते हुए जब सरकार जाती हुई 2014 में थी तो इन्होंने असीमित शक्तियां उनको प्रदान कर दिया। एक एक्ट लिया करके ये नहीं होना चाहिए, ये इससे सभी मुस्लिम समाज को फायदा होना चाहिए, चाहे वो पसपांडा हो या अदर मुस्लिम समाज हो, सबको, चाहे वो कोई भी मुस्लिम समाज का गरीब व्यक्ति, सबको फायदा होना पाठक साहब, चाहिए। आप पे आरोप है कि आपका नजर इनके प्रॉपर्टीज पे है, जो आपने बोला 10 लाख एकड़ प्रॉपर्टीज है, आफ्टर डिफेंस, आफ्टर रेलवेज, सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज वक्फ बोर्ड के हैं। 8,70,000 इनके प्रॉपर्टीज है, 8,70,000 प्रॉपर्टीज है। आप इस चीज को डिस्टर्ब करना चाहते हो, द बिग लैंड बैंक बिलोंगिंग टू द वक्फ बोर्ड, आप इस चीज को हासिल करना चाहते हो। आपके नजर और आंखें वहीं पर है। जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। तो इसका फायदा जब इतनी जमीन इनके पास है तो सबसे पिछड़ा इन्हीं का समाज क्यों रह गया? क्यों नहीं उनके यूज में इन्होंने आज तक यूज किया 70 सालों में? क्यों नहीं उससे उनको फायदा पहुंचाया? सिर्फ 20 माफिया मिलकर के क्यों उस जमीन पे काबिज हुए हैं? असीमुद्दीन ओवैसी जैसे लोग, इंडिया टुडे की रिपोर्ट है कि 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति असीमुद्दीन ओवैसी जैसे लोग लेकर के क्यों बैठे हैं। ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, मैं ऑन कोर्ट कह रहा हूं। ये चाहे तो मेरे ऊपर मुकदमा करें, चाहे तो ऑन इंडिया टुडे के ऊपर मुकदमा कर ले। 300 करोड़ से ज्यादा ऐसे 20 लोगों यहाँ पर पाठक जी एक छोटी सी चीज आपके सामने रखता हूं। पाठक जी, अजय पाठक साहब एक सेकंड। अजय पाठक साहब, आपने कहा कि इन्हीं के ट्राइब्यूनल के सामने आपको जाना पड़ेगा, यानी वक्फ बोर्ड के अपील ट्राइब्यूनल के सामने ही जाना पड़ेगा। अब जो सूरत की म्यूनिसिपैलिटी की जो बिल्डिंग है उसके ऊपर भी किसी ने वक्फ बोर्ड का दावा कर दिया था कि ये भी वक्फ बोर्ड की है साहब। सूरत के जो म्यूनिसिपल हेडक्वार्टर्स है उस पे, उसके ऊपर, क्योंकि वो मुगल सराय हुआ करती थी एक जमाने में, बादशाह मोहम्मद, वो अपने हुमायूं ने बनाई थी, इसको लेकर के ये कह दिया गया कि ये भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। ट्राइब्यूनल के सामने जब केस आया तो ट्राइब्यूनल ने उस केस को बाहर ही नहीं किया, यह कहा कि जो कंप्लेनेंट है, जिसने यह दावा लगाया है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। तो सर, जहां तक ट्राइब्यूनल का सवाल है, मेरे पास तो 2 या 3 जो फैसले आए हैं वो तो काफी अच्छे दिखते हैं मुझको, बट दे सीम टू बी क्वाइट ऑल राइट, वेरी वेरी फेयर, जस्ट दिखते हैं मुझको। मानता हूं वक्फ बोर्ड के खिलाफ बहुत कुछ होगा। अब नासिर साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, बताइए प्लीज। मेरे पाठक जी ने इतनी देर बात की मगर एक एक्ट नहीं बता पाए कि कौन सा वक्फ बोर्ड इनको रोकता है सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने के लिए, कौन सा वो एक्ट रोकता है कि सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं। ट्रिब्यूनल में जो नियुक्तियां होता है उसको कौन नियुक्त करता है? जो उसे लोअर कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? हम हाई कोर्ट, कितने लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील कर पाएंगे?
बजाज साहब इनको जरा समझाइए कि कितने लोग, मेरे को कितने गरीब लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। आप मुझे ही समझा नहीं पा रहे हैं तो आप दूसरे को नहीं समझा पाएंगे। पहले मुझे समझा लीजिए, इसके बाद आप दूसरे समझेंगे। मैं बहुत अच्छे से समझने के लिए कहाँ तैयार है, बहुत अच्छे से कांग्रेस तो कांग्रेस तो उन लोगों के साथ खड़ी है जो कांग्रेस। पाठक साहब आपको डिस्टर्ब नहीं किया ना नासिर साहब ने? मैं आपकी बात सुन रहा हूं, सुन लीजिए। हम दोनों हमेशा लड़ते नहीं रहेंगे ना, सुनते रहिए। जी बोलिए पाठक साहब। आपने जो कहा कि ट्रिब्यूनल के हम रिव्यू पिटीशन का अलाउ था ना, आप रिव्यू पिटीशन करके आप हाईकोर्ट जा सकते हैं, खुद वो शो कोर्ट नोटिस भी, शो कोर्ट भी ले सकते हैं, हाईकोर्ट खुद से भी डिसीजन। तो ट्रिब्यूनल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य गवर्नमेंट करती है, राज्य सरकार करती है। तो वो आप यूपी में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। वहां करप्शन हो रही तो भारतीय जनता पार्टी वहां के राज्य सरकार इन्वॉल्व है। अगर आप बिहार में अगर कुछ हो रही है तो हाईकोर्ट तो वहां नहीं जा रहे, तो वहां के कौन करप्टेड लोग हैं? वहां की राज्य सरकार है। तो मैं कह रहा हूं वो एक्ट कौन सा है जो आपको रोकता है? वो एक्ट का तो बताइए कि ये एक्ट मुझे रोकता है कि वहां नहीं जा। तो ट्रिब्यूनल मालूम है हिंदुस्तान में कितने तरह के हैं, कितने सारे। अभी आपने सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन गया उत्तराखंड का सीएस सिविल यूनिफॉर्म का, उन्होंने पास कर दिया, तो वो कितने सारे राज्यों से टकरा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या कहा, आपने सुना है कभी? तो उसको सुनिए कि एक राज्य उसको अगर एक्ट को करेगा तो ट्रिब्यूनल आपके गोवा में अलग है, साउथ इंडिया में अलग है, यहां अलग है, हिंदुइज्म के लिए ट्रिब्यूनल अलग है। तो मंदिरों के अंदर जो आप लोगों ने बनाया है कि मंदिर के अंदर, ट्रस्ट के अंदर सिर्फ हिंदू ही रह सकता है, जो आर्टिकल 1953 एक्ट को वॉलेट करता है, उसमें कहता है कि कोई आप जैन को नहीं हिंदू मानते हैं, सिख को हिंदू नहीं मानते, किसको आप हिंदू मानते हैं? जो आप लोग हैं, आप क्यों नहीं उसको उसमें वहां ऐड करते? वहां दूसरे धर्म को तो नहीं ला रहे, जो आपके ही हिंदू है, जिसको जैन हिंदू ही है ना, ये सिख हिंदू ही है ना, उसको तो आप मंदिर के अंदर नहीं ला रहे, उसका बोर्ड का मेंबर नहीं बना रहे। मगर आप एक्ट को, एक भी एक्ट को ये नहीं बता रहे कि वक्फ एक्ट कौन सा वो एक्ट है जो आपको रोकता है हाईकोर्ट जाने के लिए, ट्रिब्यूनल से बाहर जाने के लिए। तो आप वो समझा नहीं पा रहे, आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम की एक राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है पाठक जी, आपने जो जो वादा किया उस वादे से आपको कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं मिला। आपने भगवान राम मंदिर के नाम पे कितना वोट मांगा, पर यूपी के लोगों ने आपको नकार दिया ना, बिहार के लोगों ने नकारा आपको ना, महाराष्ट्र के लोगों ने नकारा ना आपको। तो आप सिर्फ मुद्दों को जिंदा रखना चाहते, उस मुद्दों को आपके पास सॉल्यूशन नहीं निकालना चाहते। मैं बार बार पूछ रहा हूं कि वो एक्ट कौन सा है जो आपको रोकता है, पर आपके पास जवाब नहीं है, तो आप दूसरी बातें कर रहे हैं। अरे वक्फ की जो जमीन है वो किसी सरकारी जमीन को तो कैप्चर नहीं किया है, वो हिंदुस्तान के माइनॉरिटी लोगों ने ही दिया है, तो उनके ही जमीन है। कोई बाहर से तो लाके ये नहीं किया है कि दूसरे जमीनों को कैप्चर किया हो, उसके जमीन को अगर कहीं पे करप्शन है तो आप सरकार में है, आप उस पर डिसीजन लीजिए। आपके पास नासिर साहब, let me point this out to you. One small thing. Let me point this out to you. There's an order of the judgment of the High Court of Himachal Pradesh which says very clearly no appeal is maintainable against the decision or order of the Waqf Tribunal before the High Court. This is what the Himachal Pradesh High Court has said. So which means appeal is maintainable before the Supreme Court. वो हाई कोर्ट का डिसीजन है सर, उसमें वक्फ एक्ट नहीं आ रहा है, आप समझिए। Sir, it is on the basis of the Waqf Act because sir, please, 1 second. A Waqf Tribunal judgment is equivalent to a High Court decree, and a decree can be challenged only in the Supreme Court, sir, not in the High Court. सर आप फिर 1963 में आप जाइए, 1963 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? After that the act has been changed. सर 1995 में चेंज हुआ है सर। 1963 में, एक मिनट लेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको, 19 वही कह रहा हूँ सर, आप सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। बोलिए सर, प्लीज। आप एक्ट को इतना इजीली, क्योंकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है, इसको इतना इजीली तरीके से हम समझाएंगे तो कोई नहीं समझ पाएगा। तो 1963 में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? आपने जब हाई कोर्ट का एग्जांपल दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया यही एक्ट के ऊपर कि इसके अंदर जो बनेगा वो मुस्लिम ही होना चाहिए। पर हमने उसको 95 में संशोधन किया कि उसमें कोई भी बन सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता। मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये कह रहे कि महिला नहीं बन सकती है, यहां तक कि मुतवल्ली जो होता है, जो किसी चैरिटेबल ट्रस्ट का, वो भी नॉन मुस्लिम बन सकता है। तो इसमें अगर कोई हाई कोर्ट ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट पे टिप्पणी मैं नहीं करूंगा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।
तो वो एक अलग इशू है। मगर मैं बार बार कह रहा हूं, वक्फ एक्ट ऐसा कहीं आपको पाबंदी नहीं लगा सकता है कि आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, हाई कोर्ट नहीं जा सकते, नन मुस्लिम उसका मेंबर नहीं बन सकता है, महिला मेंबर नहीं बन सकती। जो ये कहना चाह रहे हैं, तो वक्फ होता कितने तरह का, पहले ये भी तो समझाइए। वक्फ के बारे में आपको समझना है तो पब्लिक वक्फ होता है, प्राइवेट वक्फ होता है और एक फैमिली वक्फ होता है। पब्लिक वक्फ क्या होता है कि जो रोड है, ब्रिज है, कुछ है, इसके लिए अगर कोई जमीन दे दे तो वो पब्लिक है, गवर्नमेंट के थ्रू काम करती है। प्राइवेट होता है जिसमें स्कूल है, इंस्टीट्यूट है, कुछ भी मदरसा है, कुछ भी खोले, और प्राइवेट होता है। तो शिया अहमदी नॉन मुस्लिम अगर मेंबर बनता है तो क्या तकलीफ है? किसने कहा कि नहीं बन सकता है सर? तो ऑब्जेक्शन किधर है? तो ये कानून में रिफॉर्म में यही कि शिया को बनाओ, अहमदिया को बनाओ, नॉन मुस्लिम को बनाओ। प्रदीप भाई, यही तो गलत रूमर फैलाया जा रहा है कि नहीं बन सकता। ये नहीं, ऐसा है ही नहीं कि नहीं बन सकता, बन सकता है। अगर कोई नहीं बना रहा है तो वो गलत है। ऐसा एक्ट नहीं है कि वो नहीं बन सकता। मैं बार बार यही कह रहा हूं, महिला भी बन सकता है। शिया हुआ और लेडीज शिया हुआ बोर्ड है बना हुआ, कैसी बात कर रहे हैं कि नहीं है? शिया हुआ बोर्ड है ना। आज अगर इतनी ही ताकत है तो बोलिए मुकेश अंबानी का घर तो वह बोर्ड के जमीन पे बना है, उसको डिमोलिशन करोगे? है हिम्मत आपको बोलने का? मगर ये करप्शन यही से हो गया ना। एंटी लास्ट क्लासिक एग्जांपल है आप पर ये क्लासिक एग्जांपल है कि ये करप्शन चल रहा है यहाँ पर। मैंने पहले ही कहा, प्रदीप जी सुन लीजिए, मैंने पहले कहा करप्शन है तो करप्शन के लिए इंक्वायरी कौन बैठाएगी? राज्य की सरकार बैठाएगी, सेंट्रल। उसके लिए कौन रोक रहा है? आप लो ना एक्शन। अगर वक्फ एक्ट कहीं गलत कर रहा है, जी बोलिए। पाठक भाई एक सेकंड, आप फिर मैं कहता हूं अगर कहीं करप्शन है उसके लिए तो वक्फ बोर्ड जिम्मेदार है, तो उस पर एक्शन लेने का पूरी ताकत है आपको कोई नहीं रोक रहा है कि आप मत लो। अगर यूपी के अंदर वक्फ बोर्ड अगर कोई करप्शन कर रहा है तो यू आर द सुपीरियर इज देयर, यू शुड बी टेक द एक्शन। हु विल बी स्टॉप यू? कोई नहीं रोकता है आपको। बिहार में पाठक साहब, नासर साहब क्या कह रहे हैं? नासर साहब क्या कह रहे हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कि वक्फ बोर्ड का यानी वक्फ एक्ट जो है उसमें आज की तारीख में ये सब अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है। सारी पावर तो वैसे भी आपके पास है, सरकार के पास है ना। किसने मना किया आपको? हाँ, इतना जरूर है कि ट्राइब्यूनल का जो निर्णय है वो या तो आप हाई कोर्ट में जाइए, वहां पे इन ऑल लाइकलीहुड यू विल नॉट गेट एनी जस्टिस, आखिर में सुप्रीम कोर्ट में ही जाना पड़ेगा। आप पढ़े कि हाई कोर्ट में जा ही नहीं सकते, यू गो टू सुप्रीम कोर्ट। नो, हाई कोर्ट हैज सेड वेरी क्लियरली दैट अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन यू कैन नॉट। नहीं है सर। बजाज साहब जी बोलिए। बजाज साहब जी बोलिए। अभी मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, आपने सभी लोगों ने देखा होगा जी। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि वक्फ बोर्ड क्या चाहता है कि लाल किला को भी अपना बोल दे कि लाल किला हमारा है तो उसका हो जाएगा। वक्फ बोर्ड बेलगाम संस्था है, पूरी तरह से बेलगाम संस्था है, और कांग्रेस ने सिर्फ अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इसको इतनी सारी बेलगाम पावर दे रखी है। और जब अब आ रहा है इस पे तमाम तरह की चीजें कि डीएम से, जो रेवेन्यू अधिकारी डीएम होता है, उससे आपको कोई भी जगह अगर आप अपना दावा करते हैं कि ये जगह हमारी हो जाएगी तो उसका रेवेन्यू का मालिक कौन होता है? आप बताइए, रेवेन्यू का मालिक कौन होता है डिस्ट्रिक्ट में? डीएम होता है। और डीएम अगर उसमें ये फैसला देगा, ये फैसला करेगा, डीएम के पास अपील होगी, डीएम के बाद अगर फिर उसके बाद वो सेशन कोर्ट में जाएंगे, सेशन कोर्ट के बाद फिर हाई कोर्ट में जाएंगे। ट्रिब्यूनल में जाना क्यों जरूरी है? ट्रिब्यूनल क्यों फैसला करेगा? ट्रिब्यूनल के पास इतना अधिकार क्यों दे दिया जाएगा कि जो ट्रिब्यूनल का दिया हाई कोर्ट में भी, और फिर आप बीच में बोलने लगे, आप फिर बीच में बोलने लगे, आप बीच में मत बोलिए। आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा, बीच में मत बोलिए, बीच में इंटरप्ट मत करिए, फिर मैं आपको भी करूंगा इंटरप्ट। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो मैं आपको भी इंटरप्ट करूंगा। कैरी ऑन, अपना समय मत बर्बाद करिए। कैरी ऑन, बोलिए पाठक साहब बोलिए। देखिए, हाई कोर्ट ने जो अभी बोला है, पहले भी आपने बताया कि हिमाचल के हाई कोर्ट ने ये दिया था, ये कि हमारे जुडिशली के बाहर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। तो कितने लोग, साधारण लोग सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और कितने लोग सुप्रीम कोर्ट में जाकर के न्याय ले लेंगे? कि आप जिन वकीलों, आप एक वकील सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करना आम लोगों के लिए इतना आसान है क्या? इन्हीं सब चीजों को, जो असीमित अधिकार इस ट्रिब्यूनल को दे दिए गए हैं, उसी को खत्म करना पड़ेगा।
उसी को सीमित करना पड़ेगा। कांग्रेस पॉलिटिकल फायदों के लिए 20 माफिया उसको चलाते हैं, सिर्फ 20 माफिया, मैं शब्द यूज कर रहा हूं। 20 माफियाओं ने, अभी तो कर्नाटक में क्या हुआ, कर्नाटक के अंदर करोड़ों करोड़ रुपए की जगह को इसी बोर्ड ने बिल्डरों को बेच दिया और बिल्डरों ने उस पे अरबों अरब रुपया कमाया। उसका पैसा किसको गया? इन्हीं जो 20 माफिया भ्रष्टाचारी बैठे हुए हैं बोर्ड के अंदर, उनको इन्होंने किया क्या? बोर्ड के अंदर इन्होंने बोर्ड से इतनी अगर जमीन किसी के पास है तो इन्होंने 100, 200, 500 बिल्डिंगें खड़ा करके क्यों नहीं हजारों हजार करोड़ रुपए उससे रेवेन्यू आया होता। आप उनका क्या बोलते हैं, एक जो आयोग गठित हुआ था, सच्चर कमेटी जो गठित हुई थी, सच्चर कमेटी ने जो सिफारिशें की थी वही सारी सिफारिशें हम लागू कर रहे हैं। उन्होंने जो बताए थे कि जो जो चीजें इसके अंदर होना चाहिए सच्चर कमेटी के अंदर, वही सब चीजें सरकार ले आ रही है, वही सारी चीजें लागू कर रही है। इनको क्या है, इनको सिर्फ और सिर्फ हर चीज पे हिंदू मुस्लिम दिखता है। जैसे 3 तलाक ले आए, लगे हो हल्ला करने, लगे हाथ पैर इनके फूलने कि 3 तलाक मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इनको जिस तरह से इन्होंने सिर्फ 30 सेकंड और मैं लेता हूं। इन्होंने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर बना करके मुद्दा समाप्त कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने आर्टिकल 370 ले आकर के मुद्दा समाप्त कर दिया। अरे भैया, आर्टिकल 370 से ही भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई है। आर्टिकल 370 ले आकर के आर्टिकल 370 के अगेंस्ट में ही भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ का जन्म हुआ। आपको जानकारी नहीं होगी, नेहरू के कैबिनेट में, पहले नेहरू के कैबिनेट में एक मिनिस्टर थे श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अकेले ऐसे व्यक्ति थे जो खड़ा होकर के आर्टिकल 370 का विरोध किए और उसी पे जनसंघ बना, उसी पे भारतीय जनता पार्टी बनी। हमारा ये एजेंडा नहीं था, हमारा ये एजेंडा नहीं था कि हम आर्टिकल 370 के लेकर के राजनीति करते। आर्टिकल 370 को लेकर के अगर राजनीति करते तो 5 अगस्त को 2019 को समाप्त नहीं करते, उसको कंटिन्यू रखते। आप लोग 20%, कांग्रेस क्या है, 20% वोट को अपना मानती है और 80% में बंटवारा चाहती है। ये उसका मूल ध्येय है कांग्रेस का। कांग्रेस हमेशा इसी के अंतर्गत, उन्होंने 2014 की जाती हुई सरकार के अंदर ये असीमित शक्तियां उनको दे करके गए। राइट। नाज़र साहब, आप कुछ बोलने वाले थे, बोलिए सर। आप दिखा भी रहे थे कुछ आप मोबाइल पे कुछ दिखा रहे थे, क्या था? एक्चुअली मैं एक लाइन पढ़ता हूं, सच इतना बोलो कि होठों की तबस्सुम बची रहे, रोशनी मत खत्म कर आगे अंधेरा होगा। तो अभी मेरे भाई, झूठ इतना बोलो कि पूरा देश संविधान लेके चलता रहे। झूठ इतना बोलो कि संविधान में कितने पेज है राहुल गांधी को पता न चले। उस दिन जब लोकसभा में पूछ दिया अनुराग ठाकुर ने कि राहुल गांधी को चैलेंज करके कि बताओ जो लोग लेके चलते हो कितने पेज हैं, तो पेज नहीं बता पाए, सिर्फ झूठ इतना फैलाओ। जी नाज़र साहब बोलिए। कभी आपने संविधान छूकर भी नहीं देखा होगा, मुझे लगता है संविधान आपके पास, तो आप ही लेकर के चलते हैं। हम लोग चलते हैं, देखो सिर्फ संविधान आप लेकर के चलते हैं, छूते तो नहीं है। संविधान है आपके पास, दिखाओ, चलो दिखाओ। हाँ दिखाऊं, ये देखिए संविधान रखा, 3 संविधान की संविधान की कापियां रखी हुई है, बस कॉपी रखी है ना। दिखाओ मत, राहुल गांधी संविधान पढ़ो, संविधान दिखाओ मत। उस दिन अनुराग ठाकुर ने पूछ दिया कितने पन्ने हैं, तो एक जवाब नहीं था। जैसे आप संविधान को लेकर के शेर है ना, ऐसे राहुल गांधी पढ़ते नहीं है। आज अगस्त क्रांति है, झूठ बोलने का काम करते हैं। मुखर्जी का नाम लिया, यही श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ सरकार बना रहे थे बंगाल में। यही भारत जोड़ो का बात करते हो, भारत छोड़ो का किसने विरोध किया था? यही अगस्त क्रांति। आज का दिन याद है? कौन सा दिन है आज? किसके खिलाफ आप गए थे? मुझे नेहरू जी का भी याद है कि नेहरू ने किसके झंडे के नीचे शपथ ली थी। नेहरू का भी मुझे भारत छोड़ो के नेहरू किसके झंडे के नीचे शपथ लिए थे वो भी याद है मुझे। किसकी कसम खा करके नेहरू किसकी कसम खा करके विक्टोरिया की कसम खा करके नेहरू ने शपथ लिया था। देश को बांटने वालों, वह सराय की कसम खा करके, वह सराय की कसम खाया था नेहरू ने। संविधान से नफरत है आपको।
देश के संविधान से नेहरू नफरत ने है। किसकी अगर कसम उसने खाई थी वो भी अगर बता राहुल दीजिए। गांधी ने संविधान दिखाया तो 1947 में नेहरू ने किसकी कसम खाई थी? संविधान को आप संविधान की कसम खाए थे नेहरू। नेहरू वायसराय की कसम खाए थे। नेहरू जी ही मुखबिर थे। अरे आप असली मुखबिर तो नेहरू थे। मुद्दा नहीं है इस आपके देश पास में बोलने को कुछ इस नहीं है। देश में आप मुखबिरी नफरती हो, आप मुखबिरी नफरत तो फैलाते नेहरू हो, ने आप किया। नफरती हो। स्वतंत्रता आपने सेनानियों की मुस्लिम मुखबिरी लीग तो के नेहरू ने साथ किया। बनाई। आपने अगस्त क्रांति जैसे महात्मा गांधी के कातिलों में नाम है, आप कैसी बात करते हो? महात्मा गांधी के कातिलों में गांधी के विषय में तो बात ही मत करो। अरे आप मत जब बोलो। रिपोर्ट आ आपका- गई मैं नेहरू कह के रहा कि हूं, महात्मा गांधी जी के आपने ऊपर हमला महात्मा होने गांधी के वाला कातिलों में है तो आपका नाम नेहरू है। रिपोर्ट आप लेकर पे- बैठ गए। आप पे बैन असली लगाया अगर गया। महात्मा और गांधी का सरदार कोई पटेल ने कातिल बैन है लगाया। आप तो वो कैसी बात रिपोर्ट करते हो? दबाने अरे वाला भारत- नेहरू जी भारत है। जोड़ो, जो भारत नेहरू ने जोड़ो रिपोर्ट का लेकर के वीडियो महात्मा गांधी के बैठ गए। जब एक सप्ताह पहले नेहरू को रिपोर्ट मिली कि महात्मा गांधी के ऊपर अटैक होने वाला है तो नेहरू वो रिपोर्ट लेकर के बैठ गए। आप पढ़ लीजिए। अगर नेहरू का असली कोई कातिल है तो वो रिपोर्ट दबाने वाले व्यक्ति है जो एक सप्ताह पहले रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट को लेकर के नेहरू जी वो रिपोर्ट लेकर के बैठ गए। नासिर साहब, कांग्रेस पे बार बार आरोप है, कांग्रेस पे बार बार आरोप है। जब भी नेशनल इंटरेस्ट पे कोई बात हो, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, ट्रिपल तलाक हो या शाह बानो का केस हो, शाह बानो का केस हो तो कांग्रेस ऑलवेज टेक्स, कांग्रेस एक रोड़ा बन के आता है। नासिर साहब, एक हफ्ता पहले जब रिपोर्ट नासिर हुसैन जी, उस रिपोर्ट को नासिर हुसैन, महात्मा गांधी के ऊपर अटैक हो सकता है मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाने वाले नेहरू ने होंगे रिपोर्ट दबाया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके साथ थे? अरे बाबा पहले बताओ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी किसके साथ सरकारें बनाई? बोलो। भारत के साथ थे, भारत के साथ। विक्टोरिया की कसम खाने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग के बताओ, साथ थे। किसकी कसम खा करके नेहरू ने शपथ ली थी? के खिलाफ काम किसकी किया, शपथ ली थी? किसकी किसकी मुखबिरी कर रहे थे? किन किन 5 स्टार होटलों में रह रहे थे? दुनिया जेल जा रही थी, काला पानी जा रही थी और नेहरू 5 स्टार होटल में रह के जेल का मजा ले रहे थे, किताबें लिख रहे थे। कौन था वो? चिल्लाते रहो। किसकी सुविधाएं भोग रहे थे? किसके कपड़े विदेश धुल रहे थे? अरे किसके कपड़े हेलीकॉप्टर से विदेश जाते थे धुलने के लिए? प्रसाद मुखर्जी घूमते होंगे, इसलिए आपको मालूम है। नासिर साहब सुनिए, नासिर साहब, कांग्रेस में यह आरोप है कि जब भी देश हित में कोई बात हो, नेचुरल जस्टिस की बात हो, कांग्रेस, शाह बानो का केस था, शाह बानो राजीव गांधी ने क्या किया सबको मालूम है। ट्रिपल तलाक होता है, प्रश्न पूछिए, बस 2 मिनट प्रश्न सुनिए। ट्रिपल तलाक और आर्टिकल 370 और अभी बांग्लादेश में जो क्राइसिस हो रहा है, सलमान खुर्शीद, महबूबा मुफ्ती, जो इंडिया अलायंस पार्टनर सब कह रहे हैं कि ऐसा इस देश में भी होगा। इस देश हम को उसकी मुखालफत करते हैं, प्रमोट कर रहे हो। उस बात की निंदा करते हैं, हम उस बात की निंदा करते हैं। कांग्रेस कभी उनकी इंडिविजुअल बयान है, हम निंदा करते हैं, क्लियर बोलते हैं। सलमान खुर्शीद तो टिके हुए अपने हम कह रहे निंदा करते हैं, उनकी बात की खंडन करते हैं। हमारी देश की लोकतंत्र बहुत मजबूत है। हम पाठक जी से कुछ भी हो लड़ते रहेंगे, बट लोकतंत्र के खिलाफ काम नहीं करेंगे। हम पाठक जी भले लड़ते हो, मगर जब लोकतंत्र की बारी आएगी तो हम दोनों एक हो जाएंगे। प्रदीप जी, मैं जवाब देता हूं। मैं सुन लीजिए पाठक जी, आप बोल लीजिएगा, आपको मौका मिलेगा, सुन लीजिए दो। पर आपने जो कहा, मैं इसलिए कह रहा हूं कि सच क्यों मैं रोशनी दिखा रहा हूं। आपने पहले क्या कहा, आपका रिकॉर्ड है बजाज भाई, आप रिपीट करिएगा कि ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ कोई हाई कोर्ट नहीं जा सकता। इन्होंने पहले कहा। अभी मैंने दिखाया कि ट्रिब्यूनल के खिलाफ हाई कोर्ट भी गए, वहां से भी उन्होंने बड़ी ईमानदारी से अपने मतलब की बात कही। इसी हाई कोर्ट के फैसले में कितनी कुछ मुकेश अंबानी के घर की नाम आई। क्यों नहीं मुकेश अंबानी पे कुछ बोलते हैं कि वह बोर्ड की जमीन को कब्जा करके बैठो। ये इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है, मध्य प्रदेश के हिसाब से ही लिया गया है। उसमें कहा जा रहा है कि आप बोर्ड की जमीनों को खाली करना पड़ेगा, पर वहां तो आप चुप हो जाते हो। मैं कह रहा हूं, आप मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर वक्फ बोर्ड में कुछ करप्शन हो रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी है कि मुस्लिम लीग तो तमाम हिंदुस्तान के मुसलमान है। वहां की सर्वे कमिश्नर कौन नियुक्त करता है? वहां की राज्य सरकार करती है। यानी राज्य सरकार उस करप्शन में इन्वॉल्व है। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं
कि राज्य सरकार के बिना मर्जी का कहीं करप्शन नहीं हो सकता है। आप हिंदू मुस्लिम करके दिखाना चाहते हैं, आप कौमों को आधार पर बांटना चाहते हैं। मैं आप राजीव जी बोलिए सर। अब सुनिए, मैं उस पर जवाब देता हूँ। आप जवाब भी तो सुनिए, आप बोलते मत जाइए, जवाब भी सुनिए। भाई सुनते ही नहीं आप सिर्फ बोलिए मत, सर, जवाब हमारे भी पास बहुत टाइम है। सुनिए। अरे पाठक साहब, बहुत टाइम है। योगी जी की सरकार आई है, वक्फ बोर्ड इस तरह का कुछ भी नहीं कर रहा है। उनको पता है, वक्फ बोर्ड को पता है कि क्या से क्या हो जाएगा। उनको पता है जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के, और जो हाई कोर्ट ने कहा अभी मध्य प्रदेश में, वो मामला 2004 से चल रहा था, आपको जानकारी नहीं है। अरे तो हमें पूरी 2004 से चल रहा था मामला, उस पे हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है। जहां जहां आपकी सरकारें आपके पुष्टिकरण की सरकारें हैं, वहाँ सिर्फ और सिर्फ इसी तरह की चीजें करता है। कर्नाटक, केरल और इस तरह की चीजें करता है। वहाँ वो भ्रष्टाचार और ये सब चीजें करता है। अजय पाठक जी, एक सेकंड। इसीलिए अरे नासिर साहब, एक सेकंड, आप तो पारदर्शी होगी, इसीलिए आपके पेट में दर्द हो रहा है। सर, आप दोनों को एक चीज बताना चाहता हूं मैं। जब सच्चर फॉर कमेटी इन्फॉर्मेशन कमेटी की सिफारिशें उसमें लागू होगी। सर, सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशन लागू हो ही नहीं सकती। इट इज नॉट बीन एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट। नंबर 1, अगर रिकमेंडेशन एक्सेप्ट हो सकती हैं तो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की हो सकती हैं, सच्चर कमेटी की नहीं हो सकती। दूसरी चीज, वहां पर आई एम सरप्राइज कांग्रेस का कोई खड़ा होकर के उसने किरण रिजिजू जी को करेक्ट क्यों नहीं किया, पर दैट्स अ सेपरेट इशू। सर, अभी आपने पाठक साहब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का हवाला दिया। सर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का हवाला दिया आपने अभी। इसका मतलब वक्फ बोर्ड की ट्राइब्यूनल का निर्णय हाई कोर्ट में अपील हो सकता है कि नहीं? अजय पाठक जी, आप ही ने बताया ना मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का निर्णय। सर, वो कोई एक स्पेशल केस है, ये सिर्फ 2 केस हैं जी। पूरे इसमें सिर्फ 2 केस हैं जी। एक सूरत का केस है और एक सूरत का केस हाईकोर्ट में नहीं गया। 2 केस हैं सर, सूरत का केस हाईकोर्ट में नहीं गया, वो ट्राइब्यूनल ने उसको खारिज कर दिया। और जिन लोगों ने कोशिश की थी उनके खिलाफ कहा गया कि आप क्रिमिनल केस का, इनके खिलाफ क्रिमिनल केस होना चाहिए। और तीसरी चीज विच इज मोर इंपॉर्टेंट। सर, अरे पाठक साहब, आप ही की बात कह रहा हूं, पाठक साहब आप ही की बात कह रहा हूं, एक सेकंड। वक्फ बोर्ड के पास, जहां तक मैं समझता हूं, वक्फ का जो एक्ट है, नासिर साहब जरा ध्यान से सुनिए, वक्फ के पास कोई राइट नहीं है कोई जगह क्लेम करने की। वक्फ की जो जमीन होती है वो वक्फ की जाती है, औकफ की जाती है कि ये जमीन मैं आपको दे रहा हूं। अगर वक्फ कोई प्रॉपर्टी क्लेम करता है, दैट इटसेल्फ इज इलीगल। हाउ कैन द वक्फ क्लेम प्रॉपर्टी? दैट इज नॉट करेक्ट। नासिर साहब, नहीं, मैं कह रहा हूं, इसी के लिए तो सर्वे कमिश्नर उस पर नियुक्त होता है ना। किसी ने गलत क्लेम किया, उसका सर्वे होता है, सर्वे कमिश्नर नियुक्त करता है। वहां कलेक्टर पहले भी उसमें इन्वॉल्व होता है, ऐसा नहीं कि कलेक्टर आज इन्वॉल्व हो रहा है, कलेक्टर पहले भी इन्वॉल्व होता है। वहां की पूरी प्रशासन इन्वॉल्व होती है, सर्वे होता है, रिपोर्ट आता है। इसके बाद किसी को ऑब्जेक्शन हो तो ट्रिब्यूनल जाता है, ट्रिब्यूनल के खिलाफ जाना है तो हाईकोर्ट जा सकता है। तो कोई भी चीज पे आप डायरेक्ट चैलेंज नहीं कर सकते। अभी पाठक जी कह रहे हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड ही राज्य सरकार की पार्टी नहीं है, वो लग रहा है एक अलग ही संस्था है। अरे वो राज्य सरकार की ही एक हिस्सा है, उसकी सब कुछ राज्य सरकार ही चलाती है, उसकी फंड राज्य सरकार करती है, राज्य सरकार उसकी नियुक्त करती है, वो कलेक्टर के अंतर्गत काम ही करता है, सर्वे कमिश्नर गवर्नमेंट ही नियुक्त करती है। हर कुछ गवर्नमेंट के अंदर में है, वो माइनॉरिटी मंत्रालय के अंदर आता है। तो आप क्या, कौन से एक्ट है, मैं पूछ रहा हूं, 1956 का वो एक्ट कौन सा है जिसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं कि वो एक्ट से आपको नफरत है? ये क्लियर कट है कि सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड कैन डिक्लेयर नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी। दैट इज द एक्सियम नाउ कि वक्फ बोर्ड हैज गॉट द पावर टू डिक्लेयर नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टी एज वक्फ प्रॉपर्टी। नाउ ये पूरे प्रमाइस है कि ऐसे भी बहुत सारे इंसिडेंसेस आए थे जो ओनरशिप राइट्स उस व्यक्ति का नहीं है जिसने प्रॉपर्टी हैंडओवर किया वक्फ बोर्ड को, क्या करता है कि दिस प्रॉपर्टी इज योर्स। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा होता कि वो ओनर नहीं होता प्रॉपर्टी का, वो सिर्फ कोई टेनेंशियल राइट्स होता है या अलग अलग प्रकार के राइट हो, ओनरशिप बेस्टॉव नहीं है। तो ऐसे भी टाइम पर तो तभी क्या होगा
नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टी अगर टेक ओवर करते हैं वक्फ प्रॉपर्टी, तो दैट इस चीज को सिक्योर करने के लिए तो रिफॉर्म्स ला रहे हैं, और इसमें रिफॉर्म ला रहा है, तो वेयर इज द प्रॉब्लम नासिर साहब? नहीं सर, आप शायद इस मुद्दे को समझ रही, आप समझिए क्या हो रहा है। ये मुद्दा सिर्फ उसको नहीं, सिक्योर कौन करेगा? सिक्योर राज्य की सरकार ही करती है। वक्फ बोर्ड में आप बार बार समझिए राज्य सरकार की ही वो बॉडी, आप उसको अलग क्यों करना चाह रहे हैं गवर्नमेंट से? मैं समझ नहीं पा रहा। वो गवर्नमेंट की ही एक बॉडी है, गवर्नमेंट ही उसके चेयरमैन को नियुक्त करता है, गवर्नमेंट ही उसके सब कुछ देखता है। आप बार बार उसको इग्नोर करने का काम कर। मैं बार बार क्या कहना चाह रहा हूं, जो भी आज ये लाना चाह रहे हैं वो ऑलरेडी उसके अंदर है, आप उसमें कोई अलग से तो नहीं और लाना चाह सिक्योर रहे। करना चाहते हैं कि नॉन मुस्लिम प्रॉपर्टी। क्या सुनिए ना, मैं क्या तब क्यों दिक्कत हो रही है? मैं आपको बता रहा हूं क्या दिक्कत आएगी, मैं बता रहा हूं। बोलिए, जब बोलिए। एक अभी साउथ की जो ट्यूबनल है, इस ट्यूबनल पे आप ऑब्जेक्शन लेंगे तो एक देश एक विधान की बात नहीं रह जाएगी। फिर वहां के ट्यूबनल को क्या करेंगे आप? जहां की हिंदू धर्म में क्या है, एक बच्चे की अगर एक आपकी प्रॉपर्टी है तो सारे बच्चों में देना पड़ेगा, पर साउथ में क्या है ट्यूबनल में, आप किसी को भी दे सकते हैं, एक नवासे को भी, नाती को भी, नवासे को भी, पोता को भी, किसी यानी कि एक भी फैमिली मेंबर को आप दे सकते हैं, मगर हिंदू एक्ट में है नहीं है। तो वहां के ट्यूबनल वो जो काम करते हैं उस ट्यूबनल पे आप ऑब्जेक्शन लेंगे? नहीं लेंगे। तो ट्यूबनल से ट्यूबनल को टकराने का काम करेंगे तो फिर वो रिएक्ट होगा एक संविधान के एक्ट के खिलाफ। देखिए ये गलत कोट कर रहे हैं। अगर हजारों साल से हिंदू ओनरशिप है, हजारों साल से हिंदू ओनरशिप है, और उसमें मुस्लिम सेटलमेंट्स आते हैं, और फिर ये मुस्लिम सेटलमेंट वो वक्फ बोर्ड को दे देता है। ओनरशिप है हिंदुओं का, सेटलमेंट है, मुस्लिम आबादी उसमें बसा हुआ है। अगर ये हैंड ओवर करते हैं वक्फ बोर्ड का, ऐसे प्रॉब्लम्स को सिक्योर करने के लिए हिंदू क्यों नहीं दे? हिंदू भी दे सकता है ना वो बोर्ड को। नहीं, वो हिंदू नहीं देना चाहते तो सर मुझे समय दीजिए, और तुम बोलते ही जा रहे हो। नहीं हिंदू बोलिए। एक पाठक भाई, एक मिनट पाठक भाई, आप कह रहे हैं हिंदू भी तो वक्फ बोर्ड को दे सकता है। आप कह रहे हैं जब हिंदू उसके अंदर मेंबर बन सकते हैं, उसके रेगुलेट कर सकते हैं, तो वो वक्फ क्यों नहीं कर सकता है? मगर आप एक बार भी ये नहीं कहना चाहते कि मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू ही बोर्ड में आ सकता है, जैन नहीं आ सकता। कितने आईएएस ऑफिसर्स हैं बोर्ड में, अभी केरल में है, यूपी में जब आजम खान था वो खुद ही पूरे मंदिर के ट्रस्ट के वो अध्यक्ष बने बैठे थे आजम खान। कौन से मंदिर के? पूरे जितने यूपी के मंदिर के नहीं, मुलायम सिंह यादव के समय पर। नहीं, कौन से मंदिर के बोर्ड दीजिए, मैं बताता हूँ। कौन से मंदिर के बोर्ड के वो अध्यक्ष थे? सर मैं बता रहा हूँ ना, सुनिए मैं बता रहा हूँ, मैं बताता हूँ। बोलिए। हिंदुओं के आस्था के सबसे बड़े केंद्र, सबसे बड़े दुनिया के हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्र महाकुंभ की जिम्मेदारी वो आजम खान को दी गई। हिंदुओं को दुनिया में सबसे बड़ा पर्व, दुनिया का सबसे बड़ा। फिर आप बीच में बोले, नहीं मैं आपको फिर बीच में बोले, पाठक भाई आप गलत, फिर बीच में बोले, फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। मैं कुछ कह रहा हूँ, फिर बीच में बोल रहे हैं। अरे बीच में नहीं बोल रहा हूँ, आपको बता, फिर बीच में बोल रहे हैं। सारी समझ आप ही को है, सारी समझ सब कुछ क्लियर आप ही करोगे। बोलिए, सुन रहे हैं ना नासिर भाई, सुन रहे हैं। हिंदुओं के सबसे बड़े आस्था के केंद्र, जो कि 2.5 साल कंटिन्यू चलता है, तब जाकर के 1 महीने का महाकुंभ लगता है, जिसके अंदर लगभग 30 करोड़ लोग आते हैं। 15 से 30 करोड़ लोग आते हैं वहां पे, और उसकी पूरी जिम्मेदारी किसके पास थी? इसी आजम खान के पास थी। किसके पास थी? आजम खान के पास थी। तब तो सब कुछ अच्छा लगता है, तब सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन जैसे ही अगर इस तरह की चीजें होगी कि उसमें मुस्लिम महिलाएं प्रतिनिधित्व करेंगी या कोई और अल्पसंख्यक उसके अंदर आएगा, तो इनको सबसे बड़ी तकलीफ हो जाती है। अगर ये मुस्लिम महिलाओं के प्रतिनिधित्व को 70 सालों में दिए होते, 10% दिए होते, 20% दिए होते, 25% दिए होते, 50% दिए होते, सिर्फ आज तक के इतिहास में, बोर्ड के इतिहास में 70 सालों में एक महिला कुछ दिन के लिए इन्होंने नियुक्त किया, उसको भी निकाल करके आगा खान को बाहर कर दिया। तो ये सिर्फ और सिर्फ झूठ और झूठ, कांग्रेस जो है तुष्टीकरण के लिए ही ये सारी चीजें करती है। इनकी निगाह सिर्फ और सिर्फ उस 20% वोट पे है। उसको लेकर के इन्होंने किया क्या?
वक्फ बोर्ड ने आज तक किया क्या है? इनके पास कोई रिकॉर्ड है कि इतनी इतनी चीजें वक्फ बोर्ड ने, इतने बच्चों को एजुकेटेड कर दिया, इतने लोगों के संस्थाओं ने काम करा दिया, इतने लोगों को उसको बेनिफिट हुआ, कि सिर्फ माफिया बन के बैठेंगे, कि जगह लेकर के बैठ जाएंगे? और जहां तक ऑफिसर नियुक्त करने की बात है, रेवेन्यू ऑफिसर जब नियुक्त होगा तो सारी चीजें प्राइमरी स्टेज पे उसके पास जाएगी कि ये सही है या गलत है। अभी नहीं जाती है। जो सर्वे ऑफिसर होता है उसकी इतनी पावर नहीं है, वो सारी की सारी पावर उनकी है। किसी भी, मेरी जगह है अजय पाठक, कल को मैंने एक किसी को, अब्दुल को रख दिया अपने यहाँ किराएदार, उसने बता दिया वक्फ बोर्ड को जाकर के लिख करके दे दिया कि सारी जगह अजय पाठक की, वक्फ बोर्ड की है, मैं दान कर दिया। अजय पाठक ट्रिब्यूनल से लड़ते जाए और पूरे अपने बाप दादाओं की जमीन के लिए सालों साल लड़ते जाए। ऐसे 2000 मामले चल रहे हैं, एक दो नहीं, ट्रिब्यूनल में 2000 मामले, और 20 सालों में इन्होंने निपटाया नहीं। हम 20 साल लड़ते रहे, 50 साल ट्रिब्यूनल में लड़ते रहे, उसके बाद हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तब तक हमारी एक एक पीढ़ियां निकल जाए, हम लड़ते लड़ते मर जाए। ये कौन सा एक्ट है भाई? ये किसी के पास ऐसा नहीं है। ये सिर्फ झूठ और फराड और माफियाओं को जमीन देने के लिए कांग्रेस ने इस तरह का तुष्टीकरण की राजनीति ले आई, और उनको खुश करने के लिए 2013 में जब जाने लगे तो दिल्ली की 80वीं, दिल्ली की प्राइम जगह, जो सिर्फ 1 मिनट, और दिल्ली की प्राइम लोकेशन की जगह इन्होंने आनन फानन में दे दिया, बोर्ड को दान कर दिया। कहने का मतलब यह हुआ, नासिर साहब वो शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब यह हुआ वक्फ बोर्ड इज एक्टिंग लाइक अ लैंड माफिया, इज दैट इट? 100% आपने सही शब्द बताया, वक्फ बोर्ड लैंड माफिया है जी। अब नासिर साहब आप बताएं, क्या वक्फ बोर्ड लैंड माफिया है सर? बताइए। 100%। ठीक है, वो जो कह रहे हैं अपने हिसाब से कहते रहे, अभी मुझे बोलने दी। बोलिए। अभी प्रदीप भाई ने भी एलिगेशन लगा दिया, इन्होंने भी लगा दिया कि आजम खान किसी बोर्ड का मेंबर है। मैं बार बार वो क्या कह रहे हैं कि वो कुंभ का जो मेला, कुंभ का जो था उसका इंतजामात करा रहे थे, वो उसका इंतजामात देख रहे थे। वो एक एज ए मिनिस्टर होकर उसको देख, उसके चेयरमैन थे, कुंभ मेला के चेयरमैन थे, इंतजामात नहीं करा रहे थे, उसके चेयरमैन थे एक सरकार उस कमेटी के। सुन लीजिए, आप सुनना नहीं चाहिएगा तो नहीं समझ पाइएगा। हाँ बोलिए। नहीं तो आप बीच में क्यों बोल रहे थे? मैं ठीक है, आप ही बोलिए। कुंभ मेला जो हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा दुनिया में केंद्र है, उसका चेयरमैन आजम खान कैसे था? ठीक है, अब आप बोलिए ना सर, कैसे थे आजम खान चेयरमैन? बोलिए, बोलते रहिए। तब तो आपको बहुत अच्छा लग रहा था। नहीं, आप बोलते रहिए, फिर मैं बोलता हूँ जी। आजम खान की जहां तक बात है, आई डोंट थिंक दैट इज टू रेलेवेंट। However, is the Waqf board a land mafia, sir? I really want to know. अभी किसी मंदिर के बोर्ड के ट्रस्टी में चेयरमैन थे क्या? वो एक सरकार के नुमाइंदा होके नियुक्ति होती है। मंदिर ही है। अरे बाबा, वो मंदिर ही है, आपको पता नहीं है? गलत बड़ी जगह है। वो भारत का सबसे पवित्र स्थान है, हिंदुओं का सबसे पवित्र स्थान है। पाठक भाई, वहाँ आजम खान रह सकते हैं, दूसरे जगह कुंभ मेला इज नॉट अ टेंपल, बजाज जी नहीं रह सकते। तो उस वक्त कोर्ट में जा सकते थे लोग पाठक भाई, इस तरह नहीं होता। नहीं, क्यों कोर्ट में जा सकते थे? हमने स्वीकार किया, इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। जी, क्या आप बोलिए। हमने स्वीकार किया, इनको भी स्वीकार करना पड़ेगा। अरे नासिर साहब, लेट्स नॉट गेट डाइवर्टेड बाय मिस्टर आजम खान। मैं डाइवर्ट नहीं कर रहा हूं। मैं सर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। नहीं, अगर अरे सर, मेन एलिगेशन इज दैट द वक्फ बोर्ड इज एक्टिंग लाइक अ लैंड माफिया। गलत में नहीं, मेरी अच्छा बताइए। आपके व्यूअर के पास गलत आप जो बोलिए सब सही है, मैं जो बोल रहा हूं सर, आपके और पाठक साहब के बीच में, मगर मैं गलत हूं तो आप मुझे साबित करिएगा। अरे नासिर साहब, पाठक साहब और आपके बीच में यहाँ पे एग्रीमेंट नहीं होगी। लेट्स बी वेरी क्लियर। माइनॉरिटी के मिनिस्टर कौन है आज? कौन है? रिजिजू जी है ना? कोई मुस्लिम है क्या वो? अगर आज पूरे अल्पसंख्यक है, अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम नहीं होता है। आप बोलिए कि अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम होता है। एकदम सही कहा। आप ये बोलिए कि अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम होता है। कांग्रेस की पॉलिसी यही है जो आपने बोला, अभी सही बात आपके मुंह से निकली। कांग्रेस अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम समझती है। आप इसी बात पे टिके रहिएगा। कांग्रेस यही समझती है कि अल्पसंख्यक का मतलब मुस्लिम।
रिजाजू जी बन गए तो बहुत गलत है। प्रधानमंत्री ने इसी पूरे इलेक्शन में क्या झूठ बोला कि हमने अपने मैनिफेस्टो में माइनॉरिटी वोट लिखा, तो इन्होंने बोला पूरे मुसलमानों को रिजर्वेशन देना चाहती है, आपकी दो भैंस भी मुसलमानों को देना चाहती है। आपकी जमीन, आप कहाँ गधों की बात कर रहे हो, कहाँ भैंस और गधों की बात कर रहे हो, यहाँ डिबेट करने आए हो, भैंस और गधों की बात करने आए हो। देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? भैंस की बात की थी, याद है? बकरी की बात की थी, किसकी बात की थी देश के प्रधानमंत्री ने? याद है मोदी साहब ने क्या बोला था? अब मुझे पता है खटाखट की बात की थी, खटाखट बोलते हैं, खटाखट हम लोग खटाखट की बात की थी। पर आपकी झूठ को मैं वही खटाखट की बात की थी कि आजम खान मिनिस्टर जिसको बात करता है, जिसको जिन 80% को बांटना चाह रहे थे उसी की बात की थी। उन्हीं बकरी चोरों की बात की थी जो 80% को बांटना चाहते हैं, जो बकरी चोर 80% को बांटना चाहते हैं उन्हीं की बात की थी। माफी चाहूंगा सर, ऐसा तो सर क्या वक्फ बोर्ड लैंड माफिया है? नहीं, इस तरह से डिबेट नहीं होता, आप बार बार चिल्लाते रहिए। मैं तो नासिर साहब क्या वक्फ बोर्ड लैंड माफिया है? आप चिल्लाओ तो रामलीला है, पकड़ता हूं, हम चिल्लाए तो बहुत गलत है। मैं आपके झूठ को मैं पकड़ लेता हूं तो आप चिल्लाने लगते हो, यानी यही तो बीजेपी की झूठ। चलिए नासिर साहब बताइए ना, चलिए आजम खान साहब की बात हो गई, एज ए मिनिस्टर ही वाज असाइंड के जो इतना बड़ा कुंभ का मेला होने वाला है उसकी व्यवस्था बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है सर, बस हो गया, अब आगे बढ़े, अब आगे बढ़े सर, नहीं उसमें अब आगे बढ़े सर के वक्फ बोर्ड, व्हाई इज इट के वक्फ बोर्ड की जो रेपुटेशन अब बन गई है या बनाने की कोशिश की जा रही है वो भू माफिया की है, लैंड माफिया की है। अब आप बताएं नासिर साहब। मैं वही कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड को लैंड कौन देता है? आम लोग देते हैं, जो हिंदुस्तान के लोग हैं वो जमीन अपने मर्जी से देते हैं। करेक्ट। अगर वक्फ बोर्ड बोलते भू माफिया तो कौन सी सरकारी जमीन को कैप्चर किया, मैं ये जानना चाहता। और जब वो कैप्चर भी करेगा तो वो किसके पास जाएगा? सरकार के ही नजर में रहे। अगर कहीं करप्शन हो रहा है, पाठक भाई की सरकार है, हर जगह उनकी गवर्नमेंट, उस पर नकेल कसे ना, कौन रोकता है? मैं बार बार कह रहा हूं, उसको हिंदू मुस्लिम का मुद्दा नहीं होना चाहिए, ये हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाना चाह रहे हैं, इसलिए हमारा ऑब्जेक्शन। अगर कहीं पे करप्शन हुआ सर मैं जवाब देता हूं, छोटा सा एक जवाब देता हूं। भाई सुन लीजिए ना, पाठक भाई प्लीज। नासिर भाई एक छोटा सा जवाब है। जी बोलिए बोलिए बोलिए। 2014 के बाद ऐसे मामले मिनिमम आए हैं जिसमें बोर्ड ने जबरदस्ती किसी की जमीनों पे कब्जा किया है, जबरदस्ती, ये बहुत मिनिमम आए हैं। लेकिन 2000 जैसे ही कांग्रेस की सरकारें जब तक रही, मैं 2000 मामले पेंडिंग चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में, उसमें से ज्यादातर 80% मामले ऐसे हैं कि अजय पाठक की जमीन है, किसी ने बता दिया कि ये जगह हमने दान कर दिया, किसी अब्दुल्ला ने, किसी नासिर ने बता दिया कि ये जगह हमने दान कर दिया, ये बजाज जी की जगह है हमने दान कर दिया। यही 80% मामले चल रहे हैं ट्रिब्यूनल में। 2014 के पहले से 20-20, 25-25 सालों से मामले चल रहे हैं और ट्रिब्यूनल उसमें कोई फैसला नहीं दे रहा है। तारीख पे तारीख देता, कितने दिन तक अजय पाठक और बजाज साहब लड़ते जाएंगे? पुष्ट दर पुष्ट यही करते रहेंगे। इन्हीं चीजों को दुरुस्त करने के लिए कि किसी अजय पाठक की जमीन को नासिर दान न दे सके, इसीलिए एक्ट आ रहा है। आप इसीलिए आपको हिंदू मुस्लिम दिख रहा है और यही मेन आपका दर्द है। मेन जो दर्द है वो यही है। अब आप बोलिए अजय पाठक की जमीन अब आप बोलिए न कर पाए, पूरे के पूरे गांव की जमीन को 1500 साल पुराना, सुन लीजिए, बीच में मत बोलिए, पूरी बात हो जाने दीजिए तो बोलिए। 1500 साल पुराने गांव को नासिर दान कर दे कि ये पूरा का पूरा गांव हमारा वक्फ बोर्ड का हो गया, उसी को दुरुस्त करने के लिए साहब ये बात ठीक है क्या? जहां तक वक्त का सवाल है, ये बात तो सामने आई है। 1500 साल तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली, क्योंकि आप मिले हुए हैं। अरे पाठक साहब एक सेकंड, उन्हीं लैंड माफियाओं के साथ तो कांग्रेस मिली हुई है, तो कांग्रेस को समझेगी। सर एक सेकंड, तिरुचिरापल्ली में 1500 साल पुराना गांव है, उसको वक्फ ने क्लेम कर दिया कि पूरा गांव जो है ये वक्फ बोर्ड का है। इसी तरीके से क्लस्टर डेवलपमेंट अनाउंस की गई महाराष्ट्र में, वहां पर दाऊद इब्राहिम के रिलेटिव अभी भी रहते हैं। गुजरात से किसी ने कंप्लेंट कर दी कि ये भाई वक्फ बोर्ड की जमीन है, आज तक क्लस्टर डेवलपमेंट जो है रुकी हुई है।
मेरा ये कहना है। तो अब आप नासिर साहब बताएं, क्या वक्फ बोर्ड लैंड माफिया है? अब आप बताएं सर, नासिर साहब। एक्चुअली क्या है पाठक भाई, कोई एक दो एग्जांपल दे के पूरे वक्फ बोर्ड को भूमाफिया बता रहे। मैं कह रहा हूं, मैं इस एक दो करप्शन कहीं भी हो सकता है, किसी भी संस्था में हो सकता है, चंद लोगों के वजह से पूरी संस्था करप्ट नहीं हो सकती। आप बताइए, एक सरकार है अभी जो देश की सरकार है, उसमें कई करप्शन पकड़ा जाती है, तो क्या वो सरकारी को खत्म कर दोगे आप? ऐसी नहीं, स्ट्रीम जो सरकार है, मेन गवर्नमेंट में कितने करप्शन आए हैं या नहीं आए हैं? कितने सारे करप्शन आपने भी पकड़ा होगा। कहां खत्म हो रहा है? अरे बाबा आप, मैं नहीं, खत्म कहां हो रहा है? तो मुस्लिमों को आपकी बम बोर्ड खत्म हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है? अरे किसने कहा कि बम बोर्ड खत्म हो जाएगा? को बोलने तो दीजिए, क्लेम क्यों कर रहे हो आप? पाठक साहब, नासिर साहब को बोलने तो खत्म हो रहा है। जी नासिर साहब बोलिए प्लीज, वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरह से मैंने जी पाठक भाई, आप इसमें जीत नहीं सकता, आप महान आदमी है, आप बोलते रहे। आप जमीन तो मैं तो पूछ रहा हूँ कि बम बोर्ड कहाँ खत्म हो रहा है? बताइए कि किसने कहा बम बोर्ड खत्म हो जाएगा? सरकार कौन सा बिल लेके आई कि बम बोर्ड को रात कर देंगे? रात को दिन बोलिए, आप बोलते रहिए। कोई तर्क हो तो लेकिन नासिर साहब आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना, लेकिन नासिर साहब आपसे सवाल तो पूछा जा रहा है कि अमेंडमेंट डालने का मतलब ये थोड़ी कि वक्फ बोर्ड खत्म हो गया। कहाँ के बम बोर्ड खत्म कर देंगे? जी बताइए, कहा सरकार ने, आप बताइए। अरे आप सुनेंगे तो ही तो जवाब मिलेगा, आप ही बोलेंगे तो कहाँ जवाब मिलेगा? जवाब दीजिए ना सर, प्लीज प्लीज बोलिए। वक्फ बोर्ड को ये बता रहे कि सरकार का हिस्सा नहीं है, यानी ये कह रहे हैं पाठक भाई कि वो सरकार का हिस्सा ही नहीं है, वो सरकार का उसमें नियंत्रण नहीं है। गलत, अभी आप ही कह रहे हैं, अभी नहीं बोला, शुरू से लेके अभी तक आप यही कह रहे हैं। आप फिर बोल रहे नहीं कह रहे। मैं ये बोल रहा हूँ, ये आप बोल रहे हैं। बजाज भाई रिपीट करके आप वो क्लिप जरूर भेज दीजिएगा कि ये कह रहे कि सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं है, ट्रिब्यूनल पे कोई नियंत्रण नहीं है, ट्रिब्यूनल कुछ भी फैसला दे सकता है, ट्रिब्यूनल के खिलाफ नहीं जा सकते हैं कहीं। हम अरे किसी ने अगर दान दिया है तो सर्वे कमिश्नर कौन होता है? सर्वे कमिश्नर को पावर है, जब सरकार न्यूज करती है तो वही पावर जो कलेक्टर को जुडिशियली पावर है, उसको एजुकेटिव पावर है, वही एजुकेटिव पावर उसको भी है। आज कलेक्टर के ऊपर इतने सारे लोड है, आप ये भी डाल दो, मैं देखता हूँ 6 महीने में कौन सा कलेक्टर फैसला दे देगा। फिर भी उसके लिए भी आपको रेवेन्यू में जाना होगा, आपको कोर्ट जाना पड़ेगा। पार्टी को एंड ऑफ द डे कोर्ट जाना ही पड़ता है। जिसके तो नासिर साहब आपकी बातों से तो ये लग रहा है, जरा बताएं इसको। आई डोंट थिंक यू आर सेइंग दैट, बट इट सीम्स यू आर सेइंग दैट। मुझे लगता नहीं कि आप ये कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है ऐसा कि शायद आप ये कह रहे हैं कि वक्फ एक्ट जो है उसमें और अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं है। आप ये बोलना चाह रहे हैं? नहीं, कौन से अमेंडमेंट पे आपको ऑब्जेक्शन है? मैं बार बार आपके 1 घंटे के शो में मैं इतने देर से यही सवाल उठा रहा हूं, कौन से एक्ट से इनको नफरत है? तो मैं उस पर जवाब दूं। सर वो तो रिजिजू साहब ने बताया ना, they want to bring 40 amendments। अब इसका जवाब सुन लीजिए बजाज भाई, इतने वो कॉन्फिडेंस थे, उनके पास सब कुछ था ना, बहुमत था, तो बिल पास क्यों नहीं करा लिया? बहुत चिल्ला रहे हैं ना आप, क्यों नहीं बिल पास किया? क्यों भेजा आपने जेपीसी में? क्यों भेजा? आपको भी मालूम है कि उसमें कुछ नहीं है, तो आपको दुनिया को बरगलाना है, हिंदुस्तान को नहीं तो आपकी पूरी ताकत थी, पूरी सत्ता थी, पूरी मेजोरिटी थी, आप पास करा लेते। इतनी नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी ना। पाठक जी को यहाँ आके चिल्लाना पड़ता, ना मुझे बोलना पड़ता, कानून बन जाता। मगर आपने क्या किया? जेपीसी में भेज दिया, एक लटकेगा मुद्दा चलेगा, बहस चलता रहेगा, हम आप लड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम कॉमनल वार होता रहेगा, महाराष्ट्र के इलेक्शन में ये मुद्दा उठेगा, हरियाणा के मुद्दा में उठेगा, झारखंड में उठेगा। यही मुद्दे पे तो इलेक्शन करना चाहते हो आप, इसीलिए तो मैं बार बार कह रहा हूं, इस मुद्दे का आपने नजुल बिल क्यों नहीं यूपी में पास करा लिया? जबकि दोनों जगह आपकी बहुमत थी ना। आप विधानसभा में भी थी, विधान परिषद में। सुन लीजिएगा, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। दीजिएगा पाठक भाई, आप जवाब दीजिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ। अरे आप क्या जवाब सुनिएगा? सुन लीजिए, सुनिए ना, सुनना नहीं चाहते बाबा, मुश्किल आपके साथ है। आप सुनिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, सुन लीजिए ना मेरा। अरे बोल तो लिए, जवाब तो लीजिए। आप बोलिए, जवाब तो लो। क्या जवाब है बताइए। बजाज साहब, इन्होंने बोला कि इनके पास मेजोरिटी थी, इन्होंने संसद में क्यों नहीं पास करवा लिया? संसद में इनको पास करवाया, तो ये लोग खड़ा होकर समर्थन क्यों नहीं कर दिए? जब इनको पता है कि कुछ नहीं है तो खड़ा होकर समर्थन कर देते कि भैया चलिए पास करिए, हम इसके साथ हैं। तब तो ये भाग रहे थे, तब ये नहीं आ रहे थे। आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आकर के। एक मेरा 8-10 का डिबेट है, मैं दूसरे चैनल पे। अरे यार दिस ना आई टोल्ड यू दिस, नासिर इज नाउ आमिर खान। ये तो आमिर खान है यार, मतलब ही इज टोटली इन डिमांड एवरीवेयर। नहीं सर, मैंने एक को टाइम दिया है सर, प्लीज 8 बजे मुझे भी दूसरे चैनल पे जाना है। थैंक यू जेंटलमैन, थैंक यू वेरी मच। आई डोंट थिंक दिस डिबेट इज गोइंग टू एंड, लेकिन अजय पाठक जी,
अजय पाठक जी, आपके ऊपर आरोप है कि आपने जान करके उसको जेपीसी में इसलिए भेजा है ताकि मामला सुलगता रहे और तूल तब पकड़े जब चुनाव हो। तो ये चुनावी मुद्दा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सर बोलिए तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता और कांग्रेस के लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूं कि आज वो लोकसभा के अंदर एक मांग कर दें कि इसको इसी सत्र में फिर से ले आइए और पास कर देते हैं। सर, मानसून सेशन खत्म हो गया, आएगा ही नहीं। ये आपको कल बोलना चाहिए था। इनको बोलिए सर, मानसून सेशन खत्म हो गया सर, ये कल बोलना चाहिए था आपको। ये सलाह कल अगले सत्र में इनको अगले सत्र में ले आए और इसको खत्म कर दे कि ये जाए ही ना। राइट, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू जेंटलमैन, नमस्कार। और स्पेशल सत्र ले आकर के पास कर दे ताकि ये मामला जाए ही ना और बीजेपी को कोई फायदा ही ना हो। ये लोगों को खड़ा होना चाहिए था अगर ऐसा लगता है तो। ये लोग झूठ, फरेब और सिर्फ झूठ की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप 8 बजे जा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, मुझे नहीं लगता कि आप 8 बजे दूसरे शो में जा पाएंगे। नासिर साहब, आपको फरेबी कहा गया है, आपको झूठा कहा गया है, आपको हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाला कहा गया है। नासिर साहब, पाठक भाई मेरे दोस्त हैं, उनको मालूम है, वो जानते हैं मुझे अच्छे से मैं क्या हूं। मगर क्या बोलूं, ये आपस में मैं बता रहा हूं, वो जितना भी बोल रहे हैं उनको भी मालूम है कि वो झूठ बोल रहे हैं, मगर उनको बेचारे की मजबूरी है, वो बोलेंगे। आप नहीं तो वो रात को दिन भी बोलेंगे। नासिर साहब, राहुल जी का ही विरोध है कि लॉज वॉइस वोट से पास नहीं, कोई बिल वॉइस वोट से पास नहीं होगा। 25% ऑफ बिल्स हैव बीन पास लेस देन 1 आवर इन द लास्ट 10 years। राहुल गांधी ने चेतावनी दिया, तो आई थिंक बैलेंस हो गए पार्लियामेंट में कि कोई चीज वॉइस वोट में होगा नहीं। मैं समझा नहीं, क्या बोल रहे सर? राहुल गांधी जी का खुद विरोध था कि विदाउट डिस्कशन डिबेट कोई बिल पास नहीं होगा। उन्होंने आंकड़े दिए कि गए बार 25% ऑफ बिल्स 1 घंटे के अंदर पास हुआ था लास्ट 10 साल में, लास्ट दोनों सेशन टर्म मोदी जी के। उन्होंने कहा कि विदाउट डिबेट और डिस्कशन हम होने नहीं देंगे पास। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है डिबेट डिस्कशन। बिल्कुल बिना लोकतंत्र में जब तक आप किसी बिल पे डिबेट नहीं करेंगे, उसकी कमियां और फायदे को जनता के बीच में नहीं बताएंगे, बिना चर्चा किए हुए कोई भी बिल पास कर, तो ये बोलते नहीं लोकशाही नहीं हो जाएगी, फिर ये लोकतंत्र के लिए बोलते हेल्दी नहीं रहेगी, लोकतंत्र के खिलाफ तो सरकार आपकी बात सुन रही है, कहने का मतलब ये हुआ कि मोदी सरकार आपकी बात सुन रही है। बिल्कुल सुन रही है। लोकतंत्र में चर्चा होना चाहिए, हर बिल पे बात होना चाहिए। So you must congratulate Mr. Pathak. So you must सुनना ही congratulate Mr. पड़ेगा। Pathak. सरकार की आज मजबूरी है, आज बैसाखी पे ये सरकार नहीं सुनेगी तो ये सरकार गिर जाएगी। चलिए, बैसाखी है। पाठक साहब, आपसे एक सवाल सर, चलते चलते आपसे एक सवाल, yes or no? अरे एक मिनट नासिर साहब, एक सेकंड, डोंट गो, जस्ट 15 सेकंड्स। सर, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर बहुत अटैक हो रहे हैं। क्या मोदी जी उनकी मदद करेंगे या नहीं करेंगे? राहुल गांधी जी ने भी पूछा है, केसी वेणुगोपाल साहब ने भी पूछा है, बाकी सब लोगों ने भी पूछा है। व्हाट आर वी डूइंग अबाउट द बांग्लादेशी हिंदूज? क्या आप उनको अलाउ करेंगे हिंदुस्तान में आने के लिए? क्या आप बॉर्डर खोलेंगे या नहीं खोलेंगे? सर बताइए पाठक साहब। देखिए साहब, हमारा सीए कानून ही इसीलिए आया कि जो सर, आज की बात कर रहा हूं, सीए की बात छोड़ दीजिए। क्या वो लोग, उनको हम शरण दे रहे हैं नहीं? आप किसके सीए के अंतर्गत ही तो आएंगे, उनको नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता मिलेगी। सर, नागरिकता की जरूरत नहीं है, मैं अभी की बात कर रहा हूं। अवैध तरीके से थोड़ी रख देंगे हम उनको, हम अवैध तरीके से थोड़ी रख देंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी मरते तो मरे की तरह ये तो रखा। सर, तो अभी मरते हैं तो मरे। पाकिस्तान से या बांग्लादेश से आज तक हिंदू आए, उनको अवैध तरीके से ही तो रखा। तो अभी मरते हैं तो मरे। सीए का कानून पाठक साहब, अभी मंदिर जलाए जा रहे हैं, लोग मर रहे हैं, इस्कॉन का मंदिर जला दिया गया, हम लोग क्या कर रहे हैं? तो हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है इसका मतलब, हमारी फॉरेन पॉलिसी का फेलियर हो गया ना सर, ये तो बहुत बड़ा फेलियर है। सुनिए, किसी को मालूम ही नहीं था कि ऐसा होने वाला है। सर, व्हाट वर आवर इंटेलिजेंस एजेंसीज डूइंग? दूसरी चीज, कांग्रेस दोहरा रवैया अपनाती है हमेशा से हिंदुओं और मुस्लिमों के साथ। दोहरा रवैया इसलिए अपनाती है, एक तरफ तो अपने लोगों को बोल रही है कि पूरे देश में एक माहौल खड़ा करो कि यहाँ पे बांग्लादेश और श्रीलंका हो जाएगा, यहाँ पे बांग्लादेश और श्रीलंका हो जाएगा। दूसरी तरफ राहुल गांधी इस तरह की भाषा बोलते हैं, उन लोगों को निकालते नहीं है, उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। सज्जन कुमार तो सभाएं लेकर के बोल रहा है,
सभाओं में बोल रहा है, और इनके एक विदेश मंत्री हैं जिनको इन्होंने विदेश मंत्री बनाया था। इसका मतलब राहुल गांधी ने किसी एजेंडे के चलते ही उनको विदेश मंत्री बनाया था कि वो पूरे दुनिया में हिंदुओं के खिलाफ तुष्टीकरण की राजनीति करें। इसीलिए ये मेरा क्लेम है राहुल गांधी के ऊपर कि अगर उन्होंने इस तरह का प्रधानमंत्री के खिलाफ बोला तो राहुल गांधी ने उनके खिलाफ, या मणिशंकर अय्यर ने भी बोला है। मणिशंकर अय्यर तो वही व्यक्ति है, और ये भी सलमान खुर्शीद भी वही व्यक्ति है जो पाकिस्तान में जाकर के बोलते हैं कि आपकी मदद लगेगी, आप लोग सरकारों को हटाइए, सरकारों को, भारत की सरकारों को हटाने में मदद करिए। ये वही लोग हैं, और राहुल गांधी उन्हीं के साथ खड़े होते हैं। आपने कांग्रेस पे चांस लगा दिया है कि कांग्रेस, जब पैलेस्टाइन मुस्लिम्स को खुद अत्याचार हो रहा है इसराइल में, तो सबसे पहले कांग्रेस आवाज उठाई। आपने आज बीजेपी ने आवाज उठाया कि थाउजेंड्स ऑफ बांग्लादेशी हिंदूज हो रहे हैं, एंड कोई कांग्रेस की तरफ से कुछ उनके प्रोटेक्शन के बारे में। तो किस प्रकार से, बिकॉज फारूक अब्दुल्ला के हम लोग सुने, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि यूएस, चाइना और पाकिस्तान मोदी सरकार को गिराने के लिए कोशिश कर रहा है। एट द सेम टाइम महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बांग्लादेश वाले सिचुएशन यहां पर आ सकता है और होगा। सलमान खुर्शीद की बात आपने की, तो क्या ये देश विरोधी है? क्या ये टोटली इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है? कैसे देखते हो पाठक साहब आप? साहब 100% इंडिया के इंटरेस्ट में नहीं है। कांग्रेस की मंशा को सलमान खुर्शीद उजागर कर रहे हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम आप जाकर के चेक कर लीजिए कि किस तरह की भाषा बोल रहे हैं। सोशल मीडिया पे कांग्रेस का इकोसिस्टम किस तरह की भाषा बोल रहा है प्रधानमंत्री जी के खिलाफ। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलने का मतलब है कि वो ये चाहते हैं कि इस देश में भी उसी तरह की चीजें हो। उसी तरह से आम आदमी पार्टी के लोग, वहां का चुना हुआ मुख्यमंत्री किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। इंडिया ब्लॉक के लोगों के अंदर ये हताशा है कि तीसरी बार इस देश ने प्रधानमंत्री जी को कैसे चुन लिया और तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए। उसी जो राहुल गांधी और तथाकथित वामपंथियों का इकोसिस्टम है, उसी इकोसिस्टम के अंदर ये सारी चीजें कहवाई जाती है। अगर राहुल गांधी इतने पावरफुल नेता है, अगर वो एक बार किसी को बोल दे तो किसी की हिम्मत है कि इस तरह की बातें करने के? इसके पीछे राहुल गांधी की मंशा है। मैं ये साफ बोलना चाहता हूं। बेवकूफी की बातें हैं, कोई मानता भी नहीं है उसको, हास्यास्पद बात है। लेट्स बी वेरी क्लियर। आपको लगता है सलमान खुर्शीद की बात को कोई सीरियसली लेता है? छोड़िए ना सर, क्या बात कर रहे हैं? मैं आपसे क्या बात कर रहे हैं सर? आप जाकर के राहुल गांधी के ट्विटर पे या कांग्रेस के जाके देखिए कि करोड़ों लोग तो आपके लिए अच्छा है, कर रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है अगर ऐसी बात कर रहे हैं, किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छा है कि जो वोट आपका उस तरफ चला गया था वापस आ जाएगा। अच्छा मेरी बात सुनिए अजय पाठक साहब, सुनिए सर, मैं 2 मिनट और मुझे कार्यालय से फोन आ रहा है। सर हम लोग आपके हितैषी हैं। एक सेकंड, लास्ट सेकंड। सर मैं आपसे पूछ रहा हूं, वी एक्सपेक्ट समथिंग फ्रॉम मिस्टर मोदी। मोदी जी से हम लोग अपेक्षा करते हैं कि बांग्लादेशी हिंदुओं की वो मदद करेंगे। अभी बॉर्डर पे बैठे हैं सर, वी मस्ट डू समथिंग। कुछ ना कुछ तो करना चाहिए सर। पाठक साहब प्लीज। सर 100% मदद करेंगे, और सिर्फ आपकी ये भावना है, ये पूरे देश की भावना है। पूरा देश ये चाहता है, पूरा देश ये चाहता है कि जिन लोगों के साथ अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, उनकी पूरी तरह से मदद करनी चाहिए और बॉर्डर को खोलना चाहिए, बॉर्डर के अंदर उनको ले आना चाहिए। ये सिर्फ सरकार का नहीं, सरकार से हमारी मांग है, पूरे देश की ये मांग है। सिर्फ बजाज साहब, आपकी भावनाओं, आपकी जो भावना है उसके साथ पूरा देश खड़ा है, और पूरा देश ये चाहता है कि उनके साथ न्याय हो जिस प्रकार का। और ये साहब, ये वही बांग्लादेश है। आप याद करिए कि 19वीं सदी में बांग्लादेश क्या था, 18वीं सदी में बांग्लादेश क्या था, जब वहां लोग बोलते थे कि इस तरह की चीजें हो जाएगी। आज हम जब लोग बोलते हैं यहाँ पे, तो हमको क्रिमिनल कहा जाता है कि बंगाल में क्या हो जाएगा, या केरल में क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में क्या हो जाएगा, तो हमको लोग क्रिमिनल बोलते हैं। साहब कभी वही हम पाकिस्तान में बोलते थे, वही हम बांग्लादेश में बोलते थे, वही अफगानिस्तान में बोलते थे। 18वीं सदी के अंदर साहब बांग्लादेश के अंदर 26% मोदी साहब ने आज ट्विटर के माध्यम से ऑलरेडी चेतावनी दिया, बांग्लादेश को कहा कि आपको हिंदूज का ख्याल रखना पड़ेगा।
protection of Hindus and all other minority communities. It is, we hope for early return to normalcy, ensuring the safety of Hindus. क्लियर कट हिंदूज अपने ट्विटर और इस सोशल मीडिया में क्लियर कट मोदी जी ने रेफर किया, तो आपको लगता है कि मोदी जी एक कदम आगे बढ़ा दिया प्रोटेक्शन ऑफ हिंदूज के लिए? 100% सर, 100% उन्होंने आगे बढ़ाया और पूरे देश की जनभावनाओं के अनुरूप ही सरकार को काम करना पड़ता है। और पूरे देश की ये जनभावना है कि प्रधानमंत्री जी उस पर जरूर उनकी जनभावनाओं को समझ करके उस पर काम करेंगे। और आज जो आपने बताया कि प्रधानमंत्री जी का ट्वीट है, वो बांग्लादेश के लिए कड़ा संदेश है कि अगर वहां हिंदुओं के साथ कुछ भी गलत होता है तो हम उनके साथ खड़े हैं और उनके लिए हम पूरी ताकत से उनके साथ रहेंगे। कोई उनको को किसी तरह का कुचल नहीं सकता, क्योंकि अभी भी हर रोज वहां पर हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द हमारी सरकार कुछ ना कुछ करेगी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच सर, अजय पाठक जी। ओके सर, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भवानी, जय शिवाजी, जय सिया राम, हर हर महादेव। थैंक यू। But Pradeep ji, really and truly speaking, the situation in Bangladesh is really and truly very serious. We expect Mr. Modi to do something. And it is very surprising that Mr. Jaishankar, Mr. Ajit Doval and everybody else were caught napping. Nobody realized that this is about to happen. I mean, this is crazy. I think There's that such a from huge January, change. they were preempting this from January. In fact, they were informed. Which is all right, but this is suddenly. And yesterday, Prime Minister Modi has already tweeted. He said, Mr. Professor Mohammed Yunus, I welcome your new responsibilities. At the same time, safety and protection of Hindus. He has mentioned Hindus by name. Protection of Hindus and all other minority communities. India remains, and rest everything, India remains committed to working with Bangladesh. No, but as Kishore, but he has mentioned but as Hindus. Kishore Tiwari ji said yesterday, send in the army. फौज को भेज दीजिए या बॉर्डर खोल दीजिए। सब ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस में पहला है कि आप न्यू इलेक्टेड प्रेसिडेंट को बोले कि हिंदूज का संरक्षण करिए आप, which he has done yesterday, and probably if it doesn't settle in a day or two, probably they might think the other options. But at least the first time Prime Minister Modi has mentioned Hindus specifically in Bangladesh that you need to protect them along with other minority communities. That's right. That is correct, and I hope it happens. I really truly hope it happens. मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्द से जल्द होगा। बिकॉज सर, एक तरफ अगर आप ये बोल रहे हैं कि भैया देखो हम लोग जो हैं हम हिंदुओं के हितैषी हैं, हम हिंदुओं के संरक्षक हैं, हिंदुओं के खिलाफ कहीं पर भी किसी भी मुल्क में होगा तो हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। यहाँ तो पड़ोस में ही हो रहा है यार, एटलीस्ट बॉर्डर तो खोल दो। मेरा ये कहना है बॉर्डर तो खोल दीजिए, वहां पे कैंप तो बना दो। आई एग्री, इट इज अ मानसून, दोज एरियाज बाय द वे आर वाटर लॉक्ड। You know, I don't know whether you've ever been to the Bangladesh border. There are lagoons, there are lakes, there are rivers. There are 3 or 4 states that are border. Yes, Meghalaya. Right from Assam to Meghalaya to Bengal and a couple of other states. So you have a problem, even Bihar. So you have a problem there. The point is you have to have a safe haven area. You have to have an area earmarked where all these people must come in. At least we hope that happens. Well, I don't know what we are waiting for. But in any event, let's go straight across to our